Okay, children. So, till now you have studied about surface areas and volumes of solids like cube, cuboid, cylinder, cone and sphere. Now today we will study about the new shape. Let's take this glass. Now what is the shape of the glass? 90% students will say this is cylindrical in shape. But it is not cylinder. Why it is not cylinder? See the circle on the top. The radius of the circle on the top is different from the radius of the circle on the bottom. This circle is bigger than the bottom circle. So it is not cylinder. So this shape is called the frustum of a cone. Now what is frustum of a cone? F-R-U-S-T-U-M. Frustum of a cone. When a cone is cut from the middle or anywhere, we get two parts. The upper part is cone and the lower part is this shape, and this shape is called frustum. Now what are the dimensions of the frustum? We have height of the frustum h, we have the slant height L. Now we have two radii R1 and R2. You can take the other way also, the bigger radius as R1 and the smaller as R2. It is your choice. Now we will find the volume and surface area of this frustum. This frustum is used in, you can take glasses or you can take caps and the cap of a chef. In these things we use it. Now, surface area and volume. Volume of a frustum. Formula is 1 by 3 pi h r1 square plus r2 square plus r1 r2. Then we have curved surface area of frustum. That is pi L r1 plus r2. And how to find L? L is equal to under root of h square plus r1 minus r2 whole square. Now these formulas are complicated, but you can learn it very easily. You know the formula of a cone. What is the formula for volume of a cone? Volume of a cone is 1 by 3 pi r square h. Now see, 1 by 3 pi. Same height. Height of the cone एक ही होती है, height of the frustum भी एक ही है. तो h का h आ गया. लेकिन रेडियाई इसमें दो है और कोन में हमारा रेडियस एक था. तो उसके लिए हमारे पास आ गया r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2. इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, आप लोग यहाँ पे 2 लगा देते हो. 2 नहीं लगेगा, 2 r1 r2 नहीं लगेगा. ये r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर नहीं है, ये है. इसकी डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, आपने सिर्फ इसका फॉर्मूला लर्न करना है. इसी तरीके से कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम, ये भी हमने कोन में से डिराइव किया है. कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता था? पाई आर एल. तो पाई और एल तो सेम है. अब आर कोन में एक आर होता था, इसमें 2 आर है, तो क्या बन गया? r1 प्लस r2. तो अब इसमें एल की वैल्यू कैसे निकलेगी? उसमें निकलती थी हमारी एल की वैल्यू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर. पर फ्रस्टम में एल की वैल्यू कैसे निकलेगी? अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस r1 माइनस r2 होल स्क्वायर. इसी तरीके से अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, ये बिल्कुल सिंपल है. टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम क्या हुआ? कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम हमने ये कर लिया. उसके बाद एरिया ऑफ द टॉप. एरिया ऑफ द टॉप क्या है? सर्कल पाई r1 स्क्वायर. बॉटम क्या है? अगेन सर्कल पाई r2 स्क्वायर. तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम becomes curved surface area
प्लस पाई r1 स्क्वेयर प्लस पाई r2 स्क्वेयर, और यू कैन राइट कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई l r1 प्लस r2 प्लस पाई r1 स्क्वेयर प्लस पाई r2 स्क्वेयर. Now let's start exercise 13.4. Now the first question. A drinking glass is in the shape of a frustum of a cone of height 14 centimeter. देखो कैसे करेंगे हम फ्रस्टम के ग्लास की शेप बनाते हैं. चलो ये हमारा ग्लास बन गया जिसकी शेप फ्रस्टम की तरह है, ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर, ये 14 होगी. द डायामीटर ऑफ इट्स टू सर्कुलर एंड्स आर 4 and 2. तो डायमीटर दिया हुआ है 4, रेडियस क्या हो गया इसका 2, और नीचे का डायमीटर 2 है तो रेडियस क्या हो गया 1. फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास. कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम, सो यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस ग्लास. तो वॉल्यूम ऑफ ग्लास is equal to, which formula we use? We use volume of frustum. So 1 by 3 pi h r1 square plus r2 square plus r1 r2. Now put the values. All the values are given. You have to put the values and calculate. So you will do this question yourself. Now the second question. The slant height of the frustum of a cone is 4 centimeter. The slant height of the frustum of a cone. Again, पहले हम frustum की शेप बना लेते हैं. ये हो गया. इसकी अब हमें slant height दे रखी है is 4 centimeter. And the perimeters of its circular ends are 18 and 6. Perimeter. What is the perimeter of a circle? 2 pi r. So 2 pi r1 is equal to 18 and 2 pi r2 is equal to 6. अब हमें रेडियस नहीं दिया हुआ, हमें पूरा सर्कमफेरेंस दे रखा है. ठीक है, तो हमारा ये आ गया. तो इसको कर सकते हो पाई r1 is equal to 18 upon 2 that is equal to 9 and pi r2 is equal to 6 upon 2 that is equal to 3 centimeter. ये हमारे पास आ गया. हमें क्या निकालना है? फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम. तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम फॉर्मूला लिखेंगे हम पाई एल इंटू r1 प्लस r2. अब पाई तो पाई रहेगा, एल हमारे पास क्या है दिया हुआ है हमारे को, एल इज गिवन एज 4, तो इंटू 4 r1 क्या आ गया हमारे पास 9 अपॉन पाई प्लस r2 क्या होगा हमारे पास 3 अपॉन पाई. सो कैलकुलेट दिस पाई इंटू 4. पाई एलसीएम आ गया, ऊपर आ गया 9 प्लस 3. पाई से देखो पाई कैंसिल हो गया. 4 इंटू 9 प्लस 3 12. 48 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम ऑफ अ कोन. चलो Now in the third question, see, a fez, the cap used by the Turks. टर्किश लोग जो होते हैं इस टाइप की, आपकी पिक्चर बनी हुई है यहाँ पर, इस टाइप की कैप पहनते हैं. इज शेप्ड लाइक द फ्रस्टम ऑफ अ कोन. देखो फ्रस्टम है, नीचे का सर्कल बड़ा है और ऊपर का सर्कल छोटा है. इफ इट्स रेडियस ऑन द ओपन साइड इज 10. अब आपने डिसाइड करना है ओपन साइड कौन सी होगी. नेचुरली बड़ी वाली होगी क्योंकि ये सिर के अंदर आएगी, और ये छोटे वाला ऊपर जाएगा. तो ये हमारे पास कैप इस तरह से बन गई. ये अक्सर क्या होता है, फेदर लगा होता है टर्किश लोगों की कैप्स में. इफ इट्स रेडियस ऑन द ओपन साइड इज 10, तो ये ओपन साइड हुई, ये हो गई 10. एंड द रेडियस ऑफ द अपर बेस इज 4, सो ये हो गया 4. एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 15. फाइंड द एरिया ऑफ द मटीरियल यूज्ड फॉर मेकिंग इट. अब इसमें कितना मटेरियल लगेगा इस कैप को बनाने के लिए. तो अब आपने ये देखना है कि मटेरियल लगा कहाँ कहाँ है. नीचे से, यहां से तो हमने पहननी है नीचे से, तो ये तो खाली होगा. कर्व सरफेस एरिया यूज होगा और एरिया ऑफ द टॉप, क्योंकि ये ऊपर से बंद होगी. अगर ये शेफ की कैप होती तो ये ऊपर से भी खुली होती, तो सिर्फ हमारे को कर्व सरफेस एरिया चाहिए होता. लेकिन अब ये टर्किश कैप है तो ये ऊपर से बंद होती है. तो हम कैसे करेंगे,
मटेरियल रिक्वायर्ड इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम प्लस एरिया ऑफ टॉप। जहां जहां कपड़ा लगना है हमने वही एरिया लेना है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम पाई एल इंटू R1 प्लस R2, एरिया ऑफ द टॉप पाई R2 स्क्वायर। आपने ये ध्यान रखना है हमने R2 छोटे वाला रेडियस लिया है। तो अब इसके अंदर वैल्यूज डालोगे और सॉल्व करोगे। दिस यू विल डू योरसेल्फ। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, अ कंटेनर ओपन फ्रॉम द टॉप एंड मेड अप ऑफ अ मेटल शीट। एक कंटेनर है ओपन फ्रॉम द टॉप and made up of a metal sheet is in the form of a frustum of a cone of height 16 centimeter with radii of its lower and upper ends are 8 and 20। देखो lower end कम है तो ये 8 हो गया और upper end का रेडियस 20 हो गया respectively। Find the cost of the milk which can completely fill the container at the rate of ₹20 per liter। हमें क्या निकालना है कि कितना इसमें मिल्क आएगा और उसकी क्या कॉस्ट पड़ेगी अगर पर लीटर हमारे पास ₹20 है रेट है। तो पहले हम इसका वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, शेप है फ्रस्टम की तो फ्रस्टम का फॉर्मूला लगा दिया 1/3 पाई एच R1 स्क्वेयर प्लस R2 स्क्वेयर प्लस R1 R2। नाउ वी पुट द वैल्यूज 1/3। देखो पाई की वैल्यू इसमें 3.14 दी हुई है तो आपने 3.14 ही लेनी है। 3.14 इंटू हाइट हमें दे रखी है 16, R1 स्क्वेयर कोई भी ले लो 20 ले लो या 8 ले लो, 20 स्क्वेयर प्लस 8 स्क्वेयर plus 20 into 8। Now solve 1/3 into 314 upon 100 कर दो into 16, 400 plus 64 plus 160। Again solve 314 upon 100 into 16, ऐड किया इसको 4 हो गया, 6 and 6 12, 2 and 4 6, 624। ये 3 से कट जाएगा, 3 2 जा 6, 0 3 8 जा 24। इसको आपने सारा को सॉल्व किया तो आपका आंसर आएगा 10449.92 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें जो रेट दिया वो 20 रुपीज पर लीटर दिया है। तो सेंटीमीटर क्यूब को हमें लीटर्स में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 1000, 449.92 अपॉन 1000 तो ये लीटर्स हो गया। डेसिमल 3 शिफ्ट हो गया तो हमारे पास आ गया 10.45, अप्रोक्सीमेटली लेते हैं 10.45 लीटर्स। तो ये तो हो गया हमारे पास वॉल्यूम ऑफ दिस बकेट या कंटेनर। Now we have to find the cost of the milk. So cost of milk is per liter is 20, तो 20 into 10.45 मल्टीप्लाई करोगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये तो आ गया कॉस्ट ऑफ द मिल्क। पर ये क्वेश्चन अभी और भी आगे हैं। आगे है ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मेटल शीट used to make the container if it costs ₹8 per 100 centimeter square। अब हमें कितनी इसकी मेटल शीट लगेगी और उसकी क्या कॉस्ट पड़ेगी वो निकालना है। तो अब पहले तो हमें देखना पड़ेगा शीट लगेगी कहाँ पर, कर्व सरफेस एरिया और एरिया ऑफ द बॉटम। ऊपर से तो बकेट है क्योंकि इसकी लिड नहीं है, क्वेश्चन नहीं लिखा, क्वेश्चन में लिखा ओपन्ड फ्रॉम द टॉप तो इसका ढक्कन नहीं है तो आपका सिर्फ कर्व सरफेस एरिया और एरिया ऑफ द बॉटम लगेगा। तो अब हम करेंगे शीट रिक्वायर्ड इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कंटेनर प्लस एरिया ऑफ बेस। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाया हमने पाई एल R1 प्लस R2, एरिया ऑफ द बेस पाई R2 स्क्वेयर।
अब हमारे पास L नहीं है, तो पहले हम L निकालेंगे। तो L कैसे निकालते हैं? L इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 होल स्क्वायर। अंडर रूट H कितना है? 16 प्लस 20 माइनस 8 होल स्क्वायर। 16 का स्क्वायर हो गया 256, 20 माइनस 8 12, 12 का स्क्वायर हो गया 144, 400 हो गया टोटल और स्क्वायर रूट आ गया 20. So now L is 20. Now putting the values, you can take pi as common. Then L20 into R1 is 20 plus 8. R2 square. R2 square is small radius 8. 8 ka square. Now you can solve it yourself and then you have to find the cost of the sheet also. So अगेन आपका ये एरिया आ गया, कॉस्ट से मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस्ट ऑफ द शीट आ जाएगी। तो ये अब आपने खुद करना है। एंड अबाउट द फिफ्थ क्वेश्चन, ये अब हम नहीं करेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी। अभी ट्रिग्नोमेट्री हमने करी नहीं है, तो ये जब स्कूल खुल जाएगा या जब हम ट्रिग्नो कर लेंगे तब मैं ये क्वेश्चन आपको कराऊंगी। तो अब आपने ये चारों क्वेश्चन ध्यान से समझ के करने हैं। दिस इज योर होम।